Hello students, welcome to the Krish Cambridge School online classes. This is the class for 10th. Our subject is English and we are discussing your chapter first of history, which is Glorious Bharat beginning to 1206 AD. This is what we have discussing from the previous so many videos, and today we will be discussing the remaining part, and I hope that the chapter will end easily and very soon, but there are so many other you can say topics remaining in this chapter because this is a big chapter. So what we will be doing today, in the previous classes we have discussed about the Shunga dynasty and the Satvahan dynasty. Lastly we were discussing about the Gupta dynasty. So today we will start from the Gupta dynasty, but before that let me ask all of you that how are you all. I hope that all of you must be fine and safe at your home, and all of you must be attending the online classes and attending and doing all the assignments which have already been given to you. Okay, so let us begin. Take out page number 10 from your book, which is Social Science class 10th. Take out page number 10. There is Gupta dynasty. We will be starting from this. Okay, yes. Gupta dynasty 275 AD till 550 AD. Kushan dynasty almost declined. Now what happened? The Kushan dynasty had declined in North India in about 230 AD. The Kushan dynasty has almost declined. जो Kushan dynasty है वो decline होना शुरू हो गई. Then a large part of land come under the occupation of Shak Mudrans. Now what happened? जो बहुत बड़ा एक part था वो शख्स के अंदर आ गया. Who continued to rule till 250 AD. भाई जब एक हमारे जो राज्य है वो ख़त्म होगा तो दूसरा राजा उस पर राज करना शुरू कर देगा. The same had happened here. The Kushan dynasty was declined and now the Shak Mudrans was having rule over it, and they ruled there till 250 AD. After that, Gupta dynasty came into power in 275 AD. Now this line is important, that Gupta dynasty came into power in 275 AD. Okay. Shri Gupta was the founder of this dynasty, and who was the founder of this dynasty? Shri Gupta was the founder of this dynasty. See, the name of the founder is very much important because there are so many things in the different dynasties. बहुत सारी different information है, but जो है फाउंडर कौन है ये हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो श्रीगुप्त वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी. श्रीगुप्त ने इस डायनेस्टी को फाउंड किया है, बनाया है, इसका उद्घाटन किया है, जिसको कि हम जानते हैं गुप्त डायनेस्टी के नाम से. ओके, या In Prayag Prashasti, Samudragupta has described himself as the great grandson of Shri Gupta. और अगर हम बात करते हैं प्रयाग प्रशस्ति की तो उसके अंदर हमने ये जाना है कि समुद्रगुप्त ने खुद को बताया है कि वो ग्रेट ग्रैंडसन है किसके? श्री गुप्त के जो हैं वो ग्रेट ग्रैंडसन है. एंड श्री गुप्त इज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, द गुप्त डायनेस्टी. और जो समुद्रगुप्त हैं उन्होंने क्या बताया है बेटा कि वो ग्रैंडसन है किसके ग्रैंडसन है? श्रीगुप्त के. After Shri Gupta, Ghatotkacha became Gupta ruler. His title was महाराज. और श्री गुप्त के बाद इस जो पूरी डायनेस्टी के रूलर थे वो बने घटोत्कच, और उनके पास जो टाइटल था वो था महाराज. So till here what we came to know that the Gupta dynasty was started by Shri Gupta. Shri Gupta was the founder of this dynasty, and in प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त ने ये बताया है कि वो श्री गुप्त के ग्रेट ग्रैंडसन हैं. और श्री गुप्त के बाद अगर हम बात करें कौन इस डायनेस्टी पर रूल कर रहा था तो दैट वाज घटोत्कच, जिनके पास टाइटल था महाराज का. ओके, मैं आपको पढ़ाती हूँ, आपको फिर से इस चैप्टर को रीड करना है. ऐसा नहीं है कि आप बुक रख देंगे, आप रीड नहीं करेंगे, मैम ने पढ़ा दिया. नो, यू विल हैव टू रीड इट बाय योर सेल्फ बिकॉज देयर आर सो मेनी माइन्यूट इंफॉर्मेशंस गिवन हियर. ओके, यस. Now let's talk about the Chandragupta. Okay, Chandragupta first, 320 AD till 335 AD. We will be talking about the चंद्रगुप्त के बाद हम बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे अब हम बेटा? चंद्रगुप्त के बारे में. After Ghatotkacha, his son Chandragupta first became the Gupta ruler. हमने ये जाना कि श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच ने रूल किया, और घटोत्कच के बाद उनके जो बेटे थे चंद्रगुप्त फर्स्ट, ही बिकेम द रूलर ऑफ द गुप्त डायनेस्टी. दिस वी केम टू नो टिल हियर. ओके, ही अटेन द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज. किस चीज़ का टाइटल उन्हें मिला? महाराजाधिराज.
पहले के ज़माने में इन द अर्लियर टाइम्स हैविंग अ टाइटल महाराज, महाराजाधिराज एंड विक्रमादित्य, सो मैनी टाइप्स ऑफ टाइटल्स वर देयर, और ये टाइटल्स क्या शो करते थे, उनकी जो ब्रेवरी है वो शो किया करते थे. ओके, सो ही अटेंड द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज. ही मैरिड द लिच्छावी प्रिंसेस कुमार देवी, और उनकी शादी किससे हुई बेटा, लिच्छावी की जो प्रिंसेस थी कुमार देवी, उनसे उनकी शादी हुई इन 319 AD. चंद्रगुप्त फर्स्ट स्टार्टेड एन एरा विच वॉज फेमस बाय द नेम ऑफ गुप्त एरा, और इन्होंने जिस एरा को स्टार्ट किया, जिस चीज़ के ये रूलर थे, वो बहुत अच्छे से और एक बिगेस्ट नेम से, फेमस नेम से नोन है, जिसे हम कहते हैं गुप्त एरा, जिसे हम क्या कहते हैं, गुप्त एरा संवत. चंद्रगुप्त फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम. पहले हमने जाना श्रीगुप्त वॉज द फाउंडर, देन घटोत्कच रूल्ड ओवर इट, एंड देन घटोत्कच के जो सन है चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिनकी शादी लिच्छावी की प्रिंसेस कुमार देवी से हुई, और उन्होंने एक न्यू एरा को स्टार्ट किया जिसे कि गुप्त एरा संवत के नाम से जाना जाता है. आई होप यू गॉट इट टिल हियर. नाउ वी विल मूव अ बिट फॉरवर्ड. देखिए, हिस्ट्री इज़ अ सब्जेक्ट एंड दिस व्हाट वी आर रीडिंग राइट नाउ इज़ एंशियंट हिस्ट्री. The most interesting history is the modern history. Medieval history is also very much interesting, but here what we are talking about the different dynasties, उनके founder कौन थे, उनके dynasties में क्या क्या हुआ, and there is no limited number of dynasties, there are numerous number of dynasties. So हम सब कुछ याद नहीं रख सकते, सब टाइटल्स हम याद नहीं रख सकते, बट फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू हमें कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी इंपॉर्टेंट है, विच आई विल बी टेलिंग यू आफ्टर द चैप्टर व्हेन आई विल बी गिविंग यू द वर्कशीट्स, द न्यू वर्कशीट्स विच आई एम प्रिपेयरिंग. ओके, सो पूरा चैप्टर आपको रटना नहीं है, आपको पूरा चैप्टर टेक्स्ट के थ्रू याद नहीं करना है. ऐसा नहीं है कि आपने सब कुछ रट लिया. यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट एक्चुअली हैपेंड. इस रूलर के बाद ये रूलर आया, दैन इन्होंने ये किया, दिस वाज द टाइप ऑफ सोसाइटी, दिस इज़ व्हाट वाज हैपनिंग इन द कम्युनिटी. ओके, सो यू नीड टू नो ऑल दीज थिंग्स. सो आई होप दैट यू गॉट टिल हियर. श्रीगुप्त, उसके बाद घटोत्कच, देन उनके सन के बारे में चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में हमने बात करी. नाउ वी विल टॉक अबाउट द समुद्रगुप्त. ओके, चंद्रगुप्त फर्स्ट अपॉइंटेड समुद्रगुप्त एज हिज सक्सेसर. नाउ चंद्रगुप्त फर्स्ट ने समुद्रगुप्त को एज अ सक्सेसर अपना लॉन्च किया. हिज आइडियल्स वर कॉन्करिंग एंड यूनिफाइंग भारत, और उसका आइडियल क्या था, उनके आइडियल क्या थे कि पूरे भारत पर वो राज कर सके, पूरे भारत को अपने अंडर ला सके. ही बिलीव्ड इन द इम्पीरियलिज्म. हिज कोर्ट पोइट हरि सेन हैज़ डिस्क्राइब्ड अबाउट हिज विक्टोरियस मिलिट्री एक्सपीडिशन इन रिकॉर्ड्स ऑफ इलाहाबाद प्रशस्ति. और क्या है, इंपीरियलिज्म में उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है. ही वॉज इंटरेस्टेड इन कैप्चरिंग द होल इंडिया अंडर हिम बिकॉज ही वॉज सो ब्रेव. और जो भी उनकी ब्रेवरी से रिलेटेड, जो भी उनके विक्टोरियस मिलिट्री एक्सपीडिशंस है, इनके बारे में उनके कवि हरिसेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति में बताया है. यू कैन अंडरलाइन दीज लाइन्स. हिज कोर्ट पोएट हरिसेन हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट हिज विक्टोरियस मिलिट्री एक्सपीडिशन इन रिकॉर्ड्स ऑफ इलाहाबाद प्रशस्ति. तो हरिसेन जो उनके पोइट थे, उन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति में उनकी जितनी भी बहादुरी की गाथाएं थी वो सब बताई हैं. ओके, दीज रिकॉर्ड्स आर इनक्राइब्ड ऑन द सेम पिलर ऑन विच अशोकाज एडिक्ट्स आर इनक्राइब्ड. अशोका का जो पिलर था, जो एडिक्ट था, जो अभिलेख था, जो भी उनका रॉक पे लिखा हुआ था, धम था, उसी के साथ में ये चीज़ भी इंस्क्राइब की गई थी उसी सेम पिलर पर. किसके बारे में, अबाउट द समुद्रगुप्त. ओके, यस. Let's just move forward now. The ruler and countries which were won by Samudragupta can be divided into 5 groups. और समुद्रगुप्त ने जिन भी countries को रूल किया, जीता, उन्हें 5 groups में बांटा जा सकता है. Yes. The states of गंगा यमुना दोआब. गंगा यमुना दोआब के जो 5 ग्रुप में हम डिवाइड कर सकते हैं. The first group is गंगा यमुना दोआब. Second is states of eastern Himalayas. The bordering states of eastern Vindhya region. Eastern Deccan and states of South India,
and Shak and Kushan states, as per Allahabad Prashasti, he never defeated in any battle. Now you can see from north to south, from east to west, he was ruling and he never ever was defeated in a battle. किसी भी battle में वो आज तक हारे नहीं हूँ, समुद्रगुप्त. Okay, and these were the 5 groups in which his territory was divided. Samudragupta possessed a very powerful navy by which he strengthened his foreign relations, and he had a very much powerful navy जिसने क्या किया, उसे हेल्प किया दूसरे कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए. Ashwamedh Parakram can be seen inscribed on his coins. और ये जो अश्वमेध पराक्रम है इसे हम इनके coins पर देख सकते हैं. And the most famous gold coins were from the Samudragupta's era. He also excelled in fine arts. He has also been called as an excellent poet. Now what you will came to know कि Samudragupta was a ruler. He never defeated in any battle and he was a all-rounder at that time. He was a poet. He excelled in the music. His image of playing वीणा has been inscribed on the coins. पहले ज़माने में क्या होता था बेटा, जो कॉइन होते थे वो क्या शो करते थे, राजा का क्या इंटरेस्ट है वो भी शो करते थे. तो राजा अपने हिसाब से उसके ऊपर कुछ ना कुछ इंस्क्राइब करवाता था. अगर हम बात करते समुद्रगुप्त के कॉइन्स की तो उसमें कुछ कॉइन्स पर हम देख सकते हैं कि हिज इमेज ऑफ प्लेइंग वीणा बजाते हुए उनकी एक इमेज है जो कि उस कॉइन पर इंस्क्राइब की गई है. ही वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु बट हैड इक्वल रिस्पेक्ट फॉर द अदर रिलीजन्स. वो लॉर्ड विष्णु में बिलीव करते थे पर बाकी सभी रिलीजन्स की भी वो रिस्पेक्ट किया कर सकते थे. सो ऑल इन ऑल व्हाट यू कैन से दैट समुद्रगुप्त वाज अ ट्रेमेंडस पर्सनैलिटी who had so many qualities and you can say so many talent inside him, as he was a good poet, he was good in arts and he was good in music also. He was the best ruler and he was never defeated in any battle. Okay, I hope you got it till here. You can read it again and you will read it again. Okay, this is your assignment from my side. नहीं पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगा. Okay, yes, let's move forward. Now we will read about the Chandragupta second. We have read about the Chandragupta first. Now we will be reading about the Chandragupta second. 380 AD till 412 AD. Okay, now one thing which I want to tell you here, these videos are, if it is on the YouTube, what you will do, there is an option 3 dots बने होते हैं, वहाँ पे ऑप्शन है आप स्पीड को स्लो कर सकते हैं. अगर आपको स्पीड मेरी फास्ट लग रही है तो यू कैन स्लो इट डाउन एंड यू कैन लिसन टू द होल क्लास इन द स्लोएस्ट स्पीड. ओके, या Chandragupta second was the son of Samudragupta. Now he was the son of Samudragupta. Okay, he was the son of Samudragupta. He has also been called the देवराज and देवगुप्त. उन्हें देवराज और देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, जो कि किसके बेटे थे, समुद्रगुप्त के. समुद्रगुप्त के बेटे कौन थे, चंद्रगुप्त सेकेंड. He expanded his empire through marriage alliances and victories. Now in the previous times what used to happen, अपनी मैरिज से शादी करके भी ये जो दूसरी टेरिटरी है उसको अपने अंडर ले लिया करते थे. ये भी एक इनकी स्ट्रैटेजी हुआ करती थी. तो इन्होंने मैरिज अलाइंसेस के थ्रू, अपने विक्ट्रीज के थ्रू बहुत सारे एम्पायर्स को अपने अंडर लिया. ही गॉट हिज डॉटर मैरिड टू वटाका किंग रुद्रसेन. इन्होंने अपनी जो बेटी की शादी है वो किंग रुद्रसेन से करी. आफ्टर हिज डेथ प्रभावती became the real ruler by making her younger son sit on the throne. और इन्होंने क्या किया, इनकी जो डेथ हो गई उसके बाद प्रभावती जो है वो इनकी जो है रियल रूलर बनी और उन्होंने अपने छोटे बेटे को थ्रोन पर बिठाया. ओके, चंद्रगुप्त सेकेंड ऑल्सो कॉन्कर्ड वेस्टर्न मालवा एंड गुजरात. इन्होंने वेस्टर्न मालवा एंड गुजरात को भी जीत लिया था. ही मेड उज्जैन हिज सेकेंड कैपिटल. और अपनी सेकेंड कैपिटल किसको बनाया बेटा, उज्जैन को बनाया इन्होंने अपनी सेकेंड कैपिटल. देखिए अब इस पूरे पैराग्राफ में हमने उनके बारे में भी डिस्कस कर लिया, उनके डेथ के बारे में भी डिस्कस कर लिया एंड डिस्कस कर लिया कि डेथ के बाद में क्या हुआ. इन्होंने उज्जैन को अपनी सेकेंड कैपिटल बनाया. आफ्टर रिटर्निंग विक्ट्री ऑन शक्स ही अडॉर्न द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य. और शक्स पर जब इन्होंने शक पर जो थी, जो शक डायनेस्टी थी उस पर अपना जो है विजय पाली, उसके बाद इन्हें विक्रमादित्य के नाम से पदवी से जाना जाने लगा. जब भी कोई रूलर एक बहुत ही बड़ी बैटल जीत जाता है तो उसे एक बहुत बड़ी पदवी या टाइटल दिया जाता है. ओके,
I hope that you got it till here. Chandragupta II was the son of Samudragupta. Yes. Now we will move forward. Kumar Gupta. Yes, Mahendra Aditya. Now we will read about the Kumar Gupta. First we have read about the Chandragupta first, then Samudragupta, then Chandragupta second. Now we will read about the Kumar Gupta Mahendra Aditya. 414 AD till 455 AD. After Chandragupta II, his son Kumar Gupta became the ruler. चंद्रगुप्त के बाद कौन नेक्स्ट एम्पायर बना? वो बने कुमार गुप्त, जो कि उनके बेटे थे. Kumar Gupta has been regarded as the founder of Nalanda University. Underline this, you can say sentence here. Kumar Gupta has been regarded as the founder of Nalanda University को इन्होंने found किया. His empire expanded from Saurashtra to Bengal, और इतना बड़ा empire था इनका. In the last days of his rule, he had to face revolt from पुष्यमित्र, और अपने समय के अपने रूल के आखिरी दिनों में इन्हें पुष्यमित्र से जो है रिवॉल्ट फेस करना पड़ा. ओके. So this is what have happened with कुमार गुप्त महेंद्र आदित्य. ओके. चंद्रगुप्त सेकंड के ये पुत्र थे, और इन्हें क्या कहा जाता है? नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे. सौराष्ट्र से लेकर बंगाल तक इनका जो पूरा का पूरा राज्य था वो फैला हुआ था, और अपने समय के आखिरी दिनों में, अपने रूल के आखिरी दिनों में इन्हें एक रिवॉल्ट फेस करना पड़ा, जो कि पुष्यमित्र के द्वारा था. ओके. नाउ वी विल रीड अबाउट द स्कंदगुप्त. Although he was not the eldest son, Skandgupta became the successor of the kingdom. Now after Kumar Gupta, Skandgupta became the successor of the throne. It is evident from Junagadh rock edict that Skandgupta renovated the Sudarshan Lake. Underline these important facts here, that जो भी हमें एविडेंट जो सोर्सेज मिले हैं जूनागढ़ रॉक एडिक्ट से, हमें ये पता चला है कि स्कंदगुप्त ने जो है सुदर्शन लेक को फिर से रिनोवेट करवाया. ओके. उसे फिर से ठीक करवाया. विच वॉज बिल्ट बाय मौर्यन रूलर. मौर्यन रूलर के द्वारा जो बनाया गया था सुदर्शन लेक, उसे फिर से अच्छी कंडीशन में लाने का जो क्रेडिट है वो स्कंदगुप्त को जाता है. It has been mentioned in Junagadh inscription that while ascending the throne, Skandgupta had to confront the Malek Hunas. Finally, Skandgupta defeated the Hunas. And in the throne, in the inscription, Junagadh inscription, ये भी बताया गया है कि कई तरीके के फॉरेन जो रूलर्स थे उन्हें भी इन्होंने डिफीट किया है. ओके. I hope you got it till here. We read about the Gupta dynasty. Gupta dynasty हमने आज पढ़ा. About Chandragupta first, Samudragupta, Chandragupta second, then about Kumar Gupta, then about the Skandagupta. Now we will read about the cultural achievements of Gupta dynasty. क्या क्या culturally उन्होंने achieve किया. Okay. Gupta dynasty had great importance in the cultural history of India. Gupta rulers were followers of Vedic religion. Vedic religion को ये मानते थे. Okay. Samudragupta and Kumar Gupta first had even performed अश्वमेघ यज्ञ. और समुद्रगुप्त और कुमार गुप्त जो फर्स्ट थे, इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ को भी किया था. ये वैदिक रिलीजन को फॉलो करते थे. दे ऑल्सो सपोर्टेड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. द चाइनीज पिलग्रिम फान हियन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द राइन ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड. Now these are some type of question जब आप जाएंगे बड़ी क्लासेस में, when you will go fight the competitive exam, these small lines आपको तब याद आएंगी कि काश हमने उस टाइम अच्छे से पढ़ी होती. अब बात है द चाइनीज़ पिलग्रिम, जो चाइनीज़ एक विजिटर था हमारी कंट्री में, फाहियन, वो किसके समय में आए, किसके रूल के दौरान आए? वो आए चंद्रगुप्त सेकेंड के रूल के दौरान. अंडरलाइन these facts here. Okay. As per his description, Gupta empire was excellent in administration and crimes rarely took place. और उनके description से क्या पता चला? ये travelers, they used to come to India, they used to write about the different empires. क्या हो रहा है, what is the actual culture, what the people are doing now, what he has written, that the administration was excellent. जो प्रशासन था वो बिल्कुल एक्सीलेंट था, और किसी भी तरीके का क्राइम बहुत कम था वहाँ, किसी भी तरीके का क्राइम नहीं था. द बर्डन ऑफ टैक्सेस वॉज ऑल्सो लेस संस्कृत वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज. कालिदास द कंपोजर ऑफ अभिज्ञान शकुंतलम, बिल्कुल ये हम सब जानते हैं. एंड द ग्रेट एपिक रघुवंशम. रुद्रका द राइटर ऑफ द प्ले मत्स्यकटियम
Vashik Datta, the writer of the play Mudra Rakshas, and the Veeron Koshkar, Amar Singh were all present in Gupta period. Gupta period में ये सभी बहुत बड़े बड़े eminent poets, writers were present there. Okay. Ramayana, Mahabharata and Manusmriti composed in their present form in Gupta period, और रामायण, महाभारत और मनु संहिता को इसी पीरियड में कंपोज किया गया जो हम प्रेजेंटली आज हम पढ़ते हैं. Mathematician, the great mathematician Aryabhatta, Varahamira and Brahmagupta significantly contributed in the development of mathematics and astrology during the Gupta period. That's why Gupta period is so important. Most of the important discoveries, inventions were done in this period. Now आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त ने क्या किया, अपना डेवलप किए किसमें, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोलॉजी में. किस पीरियड में, गुप्त पीरियड में. द डेसिमल सिस्टम वॉज इन्वेंटेड इन दिस पीरियड. डेसिमल सिस्टम भी इसी पीरियड में इन्वेंट हुआ, विच लेटर रीच्ड यूरोप थ्रू अरेबियंस. और फिर धीरे धीरे ये कहाँ पहुँचा, अरेबियंस तक, अरेबियन से यूरोप में पहुँचा. Evidence of architecture, painting and metallurgical science of this time is evident from the remains in Jhansi, कानपुर, अजंता caves. Metallurgical science मतलब जिस तरीके से वो metals को यूज़ किया करते थे, उस समय की पेंटिंग, उस समय की जो साइंस है, ये सब चीज़ें हम एविडेंटली देख सकते हैं. किस चीज़ों से, जो अवशेष इनके बचे हैं, कहाँ बेटा, झांसी, कानपुर और अजंता केव्स में. द आयरन पिलर इन एट दिल्ली, जो एक आयरन पिलर है दिल्ली में. The 80 feet tall copper statue of the Buddha in Nalanda, and from the 7.5 feet tall copper statue of Buddha in सुल्तानगंज. तो इन सब के थ्रू बेटा हम क्या देख सकते हैं कि जो इनके कल्चरल अचीवमेंट थे, जो इनका मेटलर्जिकल साइंस था, जो इनकी पेंटिंग्स थी, जिस तरीके का आर्किटेक्चर था, विच वॉज so much developed at that time, that it is still alive and we can see them, we can see the remains. That's why cultural achievements of Gupta dynasty and the inventions and the discoveries of this dynasty is very much important. बहुत कुछ हुआ, फाहियान आए यहाँ पे, और संस्कृत ऑफिशियल लैंग्वेज थी. दैट so many famous poets were in his दरबार. रामायण, महाभारत और मनु संहिता जो हम आज पढ़ते हैं, वो इस पीरियड में उसको इसके प्रेजेंट फॉर्म में लाया गया. आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, इन सब ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया इन द मैथमेटिक्स एंड इन द एस्ट्रोलॉजी. डेसिमल सिस्टम इस समय बेटा इन्वेंट हुआ है, एंड यूरोप के थ्रू, यूरोप में ये पहुंचा थ्रू अरेबियंस. द डेसिमल सिस्टम, एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर, मेटलर्जिकल साइंस इज ऑल्सो प्रेजेंट. सो वॉट in all you can say that Gupta dynasty was one of the famous dynasty which took so many inventions and discoveries out of it. Okay, इस समय बहुत सारी discoveries and inventions हुए. So आज हमने बेटा, आज हम गुप्त पीरियड के बारे में पढ़ रहे थे. Now in the next class we will read about the society in Gupta period. I know this chapter is such a big chapter. Okay, so we will be discussing all these topics in our next classes. Till then what you will do, yes, your homework will be to write about the Gupta dynasty, that Gupta dynasty क्या थी, कौन कौन उसके रूलर्स थे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ द कल्चरल अचीवमेंट ऑफ गुप्त डायनेस्टी. गुप्त डायनेस्टी के कल्चरल अचीवमेंट्स भी आप लिखेंगे, एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें इस डायनेस्टी में हुई. देखिए, जब हम मौर्य डायनेस्टी को देखते हैं तो भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, एंड व्हेन वी कंपेयर दीज डायनेस्टीज़ विद द प्रेजेंट टाइम, हम ये सोच सकते हैं कि हम उस समय कितने डेवलप्ड थे. ये सब चीज़ें बिना आज की फैसिलिटीज़ के बिना डेवलप हुई हैं इन दैट डायनेस्टीज़. सो आप ये जान सकते हैं कि आपका कल्चर इज़ so rich, your history is so rich. This ancient history is that's why a part of your study, कि आप ये सब जान सकें कि एक्चुअल में हमारी जो कंट्री है वो कितनी ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है. सो यू विल बी राइटिंग अबाउट द गुप्त पीरियड, एंड आई होप आप लोग सब चैप्टर्स रीड कर रहे हैं, मैप्स को देख रहे हैं, रूलर्स के बारे में जान रहे हैं. और अगर हमारा स्पीच थोड़ा स्लो भी हो रहा है तो नो प्रॉब्लम, हम एक एक चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. कीप ऑन रीडिंग द चैप्टर, पीछे का छोड़िए नहीं, उसको रीड करते रहिए, उसको साथ लेकर चलिए. अदरवाइज व्हाट विल हैपन, द थिंग्स विल गो आउट ऑफ योर माइंड. Now in the next class we will be discussing about the Vardhan dynasty
और हम पढ़ेंगे पाल डायनेस्टी, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार, चोल and Chol administration and the Chol art and so many other things are remaining in this chapter, and then this chapter will end at last. It is a big chapter. No problem, we will complete it. Till then, you will take care of yourself, your family, and do your studies. Don't sit at home. Don't play the games in the phone all the time. And read how the cultural achievement took place in Gupta dynasty. आप बहुत सारे facts internet से भी ढूंढ सकते हैं about all these dynasties. Okay, so that you will get a better look that how what actually happened and how actually happened it. Okay, now अगर हम बात करते हैं कौटिल्य की और अगर हम बात करते हैं मेगास्थनीज की, फाहियान की, तो ये सब जो बेटा ट्रैवलर्स थे दे केम टू इंडिया फ्रॉम द पर्पस दैट दे विल राइट. और क्या किया उन्होंने, लिखा और बहुत अच्छे से लिखा, जो आज हमें ये शो करता है कि एक्चुअल में उस समय में क्या हुआ करता था. वो सब चीज़ें आज हम पढ़ सकते हैं only because they have written all these things. So students, at last, take care of yourself and your family. Stay blessed and best of luck for your future. Thank you again.